مومن ہو، ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ اگر تمہیں اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے تو پھر مسلمانوں تمہیں چاہیے کہ تم زانی مرد اور زانی عورت پر ترس نہ کھاؤ، بلکہ اللہ کی حد کو پورا کرو۔ اللہ فرماتا ہے میری حد کو پورا کرو کہ انہیں 100 کوڑے مارے جائیں، 100 کوڑے زانی مرد کو اور زانیہ عورت کو بھی 100 کوڑے مارے جائیں۔ اور کوڑے یعنی اس طرح کے کوڑے کہ اگر ان کی قسمت بچ گیا تو بچ گیا، ورنہ اگر کوڑا مارا جائے جس طرح کوڑے، یعنی اتنا سخت سزا زانی مرد اور زانی عورت کے لیے، اتنا سخت سزا۔ جو کسی عورت کے ساتھ برائی کرے تو دونوں کے لیے یہ سزا اللہ نے مقرر کی ہے۔ اور فقہ کے اندر ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے بھی واضح ہے اور آیت کریمہ سے بھی، کہ رجم کیا جائے گا۔ اگر شادی شدہ ہیں تو پھر رجم کیا جائے گا، اور اگر شادی شدہ نہیں ہیں تو پھر 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ رجم کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت جس نے اپنا منہ کالا کروایا، جس نے زنا کروایا، یا وہ مرد جس نے زنا کیا، تو ان دونوں کو پتھروں کے ساتھ رجم کیا جائے۔ یعنی انہیں گڑھا کھود کے اس گڑھے کے اندر انہیں کھڑا کر کے اوپر سے پتھر ان پر برسائے جائیں، اور اس وقت تک پتھر مارتے رہیں جب تک وہ مر نہ جائیں۔ اب یہ قانون جو میں بتا رہا ہوں یہ ہر بندہ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا، اگرچہ یہ تو دنیاوی اس کے لیے سزا ہے، تو اس کے لیے اسلامی حکومت ہو اور بادشاہ وقت حاکم حکم دے، یا جس طرح قاضی القضاء چیف جسٹس اسلامی حکومت، یعنی پاکستان کے اندر اگر نظام مصطفیٰ نافذ ہو جاتا ہے، اسلامی حکومت جب آ جاتی ہے، تو پھر اب حکم دے گا قاضی کہ زانی مرد اور زانی عورت کو شادی شدہ ہیں تو انہیں رجم کیا جائے، اور اگر شادی شدہ نہیں ہیں تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں، اور یہ حدیث پاک متفق علیہ، بلکہ تمام سیاستہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے چوری کی تو قریش کو خوف محسوس ہونے لگا کہ اسے حد مقرر، اس پر حد لگنا ہو، تو قریش نے یہ مشورہ کیا کہ ہم کسی ایسے بندے کو آقا علیہ السلام کے پاس بھیجے جو حضور سے سفارش کرنے کی جرات رکھتا ہو، یعنی حضور سے اتنا حضور کو وہ پیارا ہو اور اتنا حضور کا وہ خاص بندہ ہو کہ وہ جا کے اس کی سفارش کر سکے کہ اسے حد سے بچایا جائے، اسے جو شرعی سزا ہے اس سے بچایا جائے۔ اب چوری تو اس عورت نے کر لی، انہوں نے مشورہ کیا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سب نے کہا کہ وہ حضور کو پیارے ہیں اور حضور کے پیارے ساتھی ہیں، وہ جائیں آقا علیہ السلام کے پاس اور وہ نبی علیہ السلام سے سفارش کریں تاکہ اسے حد نہ لگے چوری کی، کیونکہ چوری کی حد ہاتھ کاٹنا ہے۔ تو جس وقت حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم شفیع معصوم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں معاف کر دیا جائے، اس کی میں سفارش کرنے آیا ہوں، تو اسے چوری کی حد نہ لگائی جائے، اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں جو چوری کی سزا ہے شریعت کے اندر۔ تو میرے آقا نبی اکرم شفیع معظم، توجہ سے سنیے گا، میرے آقا نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ سے سفارش کرنے آئے ہو، حالانکہ اس بات پہ سابقہ امتیں ہلاک ہوئیں، سابق انبیاء کی امتیں ایسی باتوں پر ہلاک ہوئیں کہ انہوں نے جو شریف، یعنی جو علاقے میں چدراہٹ کے لحاظ سے شریف تھے، جو مالدار تھے، اگر ان سے کوئی چوری ہو گئی، ان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا
ان سے مطلب زنا ہو گیا، مطلب ان سے کوئی شراب ان نے پی لی، تو اس کو یعنی اس کی سفارش کر کے اس پر حد قائم نہیں کرتے تھے، اور جو غریب ہوتا اس پر حد قائم کی جاتی، غریبوں پر۔ تو یہ کام تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سابقہ انبیاء کی امتوں کے اندر یہ خرافات آئے، اس طرح کی انہوں نے یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واضح کیا کہ اسلام کے اندر برابر ہیں سب، خواہ کوئی امیر ہو خواہ کوئی غریب ہو۔ جب اس سے برائی ہو گئی ہے تو برائی کی جو قرآن نے یا احادیث کے اندر جو برائی کی حد آئی ہے تو وہ حد تو ضرور لگے گی۔ تو اس پر میرے آقا نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے کو خدا کی قسم، مجھے قسم ہے خدا کی، اگر اس پر میری بیٹی حضرت فاطمہ خاتون جنت طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہوتی، معاذ اللہ، وہ تو جنت کی عورتوں کی سردار۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو بتا رہے تھے کہ لوگوں اگر بیٹی بھی ہو اور جب اس سے یہ جرم سرزد ہو جائے تو اسے بھی معافی نہیں مل سکتی، حالانکہ وہ تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا حضور کی بیٹی کی طرف کوئی گناہ کی نسبت ہو، کوئی چوری کی نسبت ہو۔ تو یہ تعلیم امت کے لیے تھا، میرے آقا نے امت کو یہ تعلیم دی۔ تو فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا، اسے بھی حد چوری کی جو حد ہے ہاتھ کاٹنا، وہ حد اس پر بھی ضرور قائم کی جاتی، اگرچہ یہ کام حاکم اسلام کا ہے حد لگانا، یہ کام قاضی کا ہے۔ اسلامی حکومت ہو، پھر جب نظام مصطفیٰ قائم ہو اور اس کے مطابق پھر حاکم اسلام اجازت دے حد لگائے تو پھر اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ لیکن دیکھو آج کتنا ایسے گناہ ہیں کہ لوگ دلیر ہو کر وہ گناہ کرتے ہیں، اور ان کی جو آج ایک مگرمچھ دولت کے گھمنڈ کے اندر وہ مگرمچھ سانپ جو بیٹھے ہیں انہیں تھوڑی بہت رشوت دے کے انہیں آزاد کروا دیا جاتا ہے، جیل سے رہائی مل جاتی ہے انہیں جیل سے۔ یعنی جتنا آج جس کے پاس پیسہ ہے بس اس کی لاٹھی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کہ آج وہ بڑے سے بڑا جرم ہی کیوں نہ کر لے، پیسہ ہے یا اس کے دوست احباب ایسے جو دنیا دار کمینے مگرمچھ ہیں، وہ اس کی یعنی سفارش کروا کے پیسہ دلوا کے اسے بری کروا لیتے ہیں عدالتوں سے، تھانے کچہریوں سے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا کہ بیٹی بھی ہو پھر بھی اس پر حد ضرور لگے گی اگر اس نے جرم کیا ہے۔ دیکھو اب اس کے بعد رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دو شخص مقدمہ لائے، آ کے عرض کرتے ہیں، اب یہ حدیث پاک بھی متفق علیہ بخاری اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایک نے کہا کہ ہمارے درمیان فیصلہ کریں کتاب اللہ کے مطابق، قرآن کے مطابق فیصلہ کریں۔ اور پھر دوسرے نے بھی یہی کہا کہ میں بھی اسی پر قائل ہوں، میں بھی اسی کا قائل ہوں، اسی پر قائم ہوں کہ فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کیا جائے ہم دونوں کے درمیان۔ اب ایک نے کہا کہ میرا ایک بیٹا جو ساتھ دوسرا تھا، اس کے پاس نوکر تھا، میرا ایک بیٹا نوکر تھا اس کے پاس، اور میرے بیٹے نے اس کی یعنی جو میرا نوکر بیٹا اس کے پاس تھا اس نے اس کی بیوی سے زنا کیا، اور جب مجھے بتایا گیا تو میں نے اس کے عوض انہیں 100 بکریاں دی کہ معافی مل جائے، 100 بکریاں دی، اور میں نے ایک لونڈی کنیز، کیونکہ اس وقت یہ لونڈیاں کنیز یہ بھی بیچی جاتی تھی، میں نے وہ بھی دے دی۔ تو یا رسول اللہ کتاب اللہ کے مطابق آپ نے فیصلہ کرنا ہے، ہمارے فیصلے کو نہیں ماننا۔
बाप ये नहीं कहता कि या रसूलल्लाह मैंने तो दे दिया है सब कुछ इसके बदले में, 100 बकरियां दे दी जिना के बदले में, मैंने तो कनीज दे दी है जिना के बदले में, तो मुझे माफी मिल जाए। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि माफी मिल जाए, उसने कहा या रसूलल्लाह जो किताबुल्लाह के अंदर है, जो या रसूलल्लाह आपका फैसला है, जो आपके रब का फैसला है, या रसूलल्लाह वो फैसला हमें मंजूर है। अगर हमारा यानी मेरा बकरियां देना और कनीज देना अगर ये इसके किताबुल्लाह के और आपके फैसले के खिलाफ है तो फिर आप इसको रद्द फरमा दें। तो आका नबी अकरम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसकी 100 बकरियां वापस की जाएं, 100 बकरियां इसकी वापस की जाएं और कनीज भी वापस की जाए, और इसको इसके बेटे को 100 कोड़े लगा के, कोड़ा प्याज की चाबुक नहीं, कोड़ा कि इंसान के जिस्म पर पड़े और एक कोड़ा लगे और चमड़ी उधोड़ दे, तो ऐसा कोड़ा 100 कोड़े लगे, एक कोड़ा नहीं 100 कोड़े लगे, और फिर उसको शहर बदर कर दिया जाए 1 साल के लिए, यहां से दूसरे शहर में इसको 1 साल के लिए मुंतकिल कर दिया जाए, इसकी ये सजा है। और उधर उसकी बीवी, क्योंकि वो शादीशुदा थी, उसकी औरत, तो शादीशुदा की और कंवारे की सजा के अंदर फर्क है। जिना तो दोनों ने किया, लेकिन उधर एक कुंवारा था और बीवी शादीशुदा थी, तो इस वास्ते कहा कि इसकी बीवी से जाकर पूछो, अगर वो जिना का इकरार करे कि वाकई मुझसे गुनाह हो गया है, मैंने मुंह काला किया है इसके साथ, तो फिर फरमाया कि उसको रजम किया जाए, उसको रजम की सजा दी जाए, यानी पत्थर मार मार के गड्ढा खोद के और उसमें उसको डाल के ऊपर से पत्थर मार मार के इस तरह उसे मार दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, तो ये उसकी सजा है। अब देखो ये फैसला तो कुरान और महबूब का है। अगर आज इस तरह के फैसले अगर हमारी हुकूमत करने लगे, हमारी अदालतों में इस तरह के फैसले करने लगे, तो खुदा की कसम कोई बंदा जिना करते वक्त 1000 मर्तबा सोचेगा, 1000 मर्तबा वो सोचेगा, और फिर उसके बाद वो कोई कदम उठा सकता है, क्योंकि दूसरी एक तरफ उसको कोड़े नजर आएंगे, उसको मौत नजर आएगी, उसको ये खौफ खा जाएगा और वो जिना से बाज रहेगा। और ये फैसला यहूदियों के साथ भी मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया। इसी बुखारी और मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है कि यहूदियों में से एक मर्द और औरत से जिना हो गया, तो कुछ यहूदी आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर इसकी बारे में उन्होंने कहा कि आप हद कायम करें, इसके उम्रा के बताया, यानी वो बज़ाहिर समझ रहे थे कि आका अलैहिस्सलाम इस पर कोई खफीफ सजा, थोड़ी सी सजा मुकर्रर करेंगे, तो फिर कयामत के दिन हम ये बता सकेंगे कि कयामत के दिन हमें इससे छुटकारा मिल सकेगा, क्योंकि आखिरी नबी ने हमें सजा दी थी, वो जो अगरचे छोटी मोटी सजा थी, यानी कयामत के दिन यहूदी बज़ाहिर वो सुरखरू होना चाहते थे। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसकी सजा रजम है। ने कहा कि हमारी किताब के अंदर तो नहीं है रजम। अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया झूठ बोलते हो तुम यहूदियों, मैं दिखाता हूं तुम्हारी किताब तौरात के अंदर कि जिना की जो सजा है वो रजम है। जिना की सजा पत्थर मार मार के मार देना है, जान से खत्म कर देना है। जो इस्लाम के अंदर सजा है वही तुम्हारी किताब तौरात के अंदर भी है, मैं दिखाता हूं तुम्हें। अब ये सब कुछ आका अलैहिस्सलाम के सामने हो रहा था। तो जिस वक्त हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ले आओ तौरात, मैं दिखाता हूं, यहूदी तौरात ले आया, तो यहूदियों का जो आलिम था उसने वो हिस्सा खोला जहां पर हद लिखी हुई थी, इसकी जिना की जो हद थी। अब उसने यानी माँ कबल को भी पढ़ा, माँ बाद को भी पढ़ा, लेकिन जहां पर रजम लिखा हुआ था उस पर उसने हाथ रख दिया। यहूदी ने हाथ रख के माँ कबल को भी पढ़ा, माँ बाद को भी पढ़ा। तो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ने फरमाया यहूदी हाथ हटा दे तौरात से, क्या हम नहीं जानते कि तू छुपा रहा इस मसाला को?
तो जिस वक्त उसने हाथ उठाया तो सामने वो मसला लिखा हुआ था। तो इस वास्ते यहूदियों को भी मेरे आका अलैहिस्सलाम ने माफी नहीं दी, यहूदियों को भी उसी वक्त रजम किया गया, उनको पत्थर मार मार के उन्हें खत्म कर दिया गया। तो ये सजा है जिनाह की। कुरान और सुन्नत के अंदर जो सजा है वही तौरात के अंदर भी सजा मौजूद थी। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा उनसे, यहूदियों से, कि तुमने आखिर क्यों इसको छुपाया और तुमने ये फैसला रब का क्यों छोड़ दिया जो तौरात के अंदर लिखा हुआ है। तो इस पर यहूदी कहने लगे, जो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किस पर? हजरत उसामा बिन ज़ैद की बात पर, कि अगर मैं तुम्हारी सिफारिश को मान लूं इस औरत के हक में कि इस पर जो हद है का हाथ काटने की, चोरी की जो हद है, अगर वो मैं तुम्हारी बात मान लूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया कि ये सब उम्मतों में भी यही था, क्या करते थे, यानी सिफारिश, अमीरों की सिफारिश को कबूल कर लेना, उनको सजा ना देना और गरीबों पर हद कायम कर लेना। तो इस पर उस यहूदी से जब पूछा गया तो बिल्कुल वही उसने बात बताई कि हमने जब देखा कि हम जो उमरा हैं, हमारे जो चौधरी हैं, जो शरीफ हैं, यानी नसब के लिहाज से वो बड़े अमीर हैं, शरीफ हैं, तो उन पर हम ये हद कायम नहीं करते थे, और जो गरीब होता उस पर हद कायम कर देते, उसे रजम करते थे। तो इस वजह से फिर हमने आपस के अंदर मशवरा किया और हमने एक इस पर तजवीज़ निकाली कि क्या किया जाए। तो हमने ये सोचा कि हम तौरात को छोड़कर जो बंदा जिनाह करेगा उसकी सज़ा ये रखेंगे कि उसका मुंह काला करके उसको गधा पर बिठा के शहर के अंदर चक्कर लगवाएंगे। तो उनने तौरात के फैसले को यहूदियों ने छोड़ा। तो इस वास्ते हजरत मोहतरम मेरे आका नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये फरमान मौजूद है मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल के अंदर कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस कौम के अंदर जिना जाहिर हो जाता है, जिस कौम के अंदर जिना जाहिर हो जाता है, फरमाया उस कौम के अंदर कहत साली आ जाती है। और ये आज भी हमारे सामने है कि वो लोग हमने अपनी आंखों से देखा, उस कौम को बर्बाद होता हुआ हमने अपनी आंखों के साथ देखा, जिनके पास 100 बीघा 50 जनाबे वाला बीघा मुरब्बे की तादाद के मुताबिक जमीनें थी, जिनके बड़े बड़े कारोबार थे, वो बड़े बड़े ताजिर थे, जो वो लोग जब इस किस्म की बीमारी के अंदर, गुनाह के अंदर मुब्तला हुए, जिना जैसे गुनाह के अंदर मुब्तला हुए, आज वो लोग हैं कि अपनी जमीनें बेच गए, अपनी वो कारोबार हर चीज बेचकर आज उनका घर का खर्चा पूरा नहीं होता। आज इस तरह वो कहत साली के अंदर मुब्तला हुए, उनके गुनाहों की नहूसत की वजह से, जिना की नहूसत की वजह से इस कदर वो कहत साली के अंदर मुब्तला हुए कि आज दर दर एक से सवाल कर रहे हैं कि यार आज हमारे घर का आटा पूरा नहीं होता, आज सौदे उधारे दे दो, घर के सौदे पूरे नहीं होते। जिनके पास गाड़ियां थी, जिनके पास बंगले थे, जिनके पास जमीनें थी, उन लोगों की हालत हो चुकी है कि उनके अंदर जिना जैसी बीमारी आ गई। तो जिना जैसी बीमारी के आने की वजह से ये उन पर नहुसत आई। मेरे आका अलैहिस्सलाम का ये फरमान सच है और ये हमारे सामने प्रैक्टिकल हुआ है। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इसी हदीस के आगे ये अल्फाज भी है, फरमाया कि फिर जिस कौम के अंदर रिश्वत आ जाए उस कौम का रोग खत्म हो जाता है। जिस कौम के अंदर रिश्वत आ जाए, रिश्वत, उस कौम का रोग दबदबा खत्म हो जाता है। यानी उस कौम के अंदर कोई दबदबा नहीं रहता, लोगों का, दूसरी कौम का उन पर दबदबा होता है, उन दूसरी कौम का उन पर रोब होता है और इनका उन पर कोई दबदबा नहीं होता, ये पगल हो जाते हैं। तो इस वास्ते ये रिश्वत की नहुसत है। और ये भी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस कौम में जिना और सूद आ जाए,
जिस कौम के अंदर जिना और सूद आ जाए तो अब वो अल्लाह ताला के अजाब को उन्होंने अपने ऊपर हलाल कर लिया है। अल्लाह के अजाब को उन्होंने अपने ऊपर हलाल कर लिया है, यानी अब उनके पास कोई हुज्जत बाकी नहीं रही कि वो अल्लाह के अजाब से बच सके। अल्लाह के अजाब को कोई उनके पास ऐसा बहाना नहीं रहा। उन्होंने अल्लाह के अजाब को दावत दी है, अल्लाह का अजाब उन पर हलाल हो चुका है। तो इस वास्ते ये जिना और सूद की नहूसत है कि अल्लाह ताला किसी वक्त भी उस कौम पर अपना अजाब मुसल्लत कर सकता है। इसी तरह ये भी मेरे आका अलैहि सलाम का फरमान मौजूद है, फरमाया मुझे सबसे ज्यादा, तवज्जो करें, मुझे सबसे ज्यादा जिस बात का खौफ है, अपनी उम्मत का खतरा है, जिस बात का सबसे ज्यादा खतरा, सबसे ज्यादा खौफ, फरमाया वो अमले कौमे लूत है। अमले कौमे लूत है कि कौमे लूत वाला इनके अंदर अगर काम आ गया तो फिर ये अल्लाह के अजाब से बच नहीं सकेंगे। और मेरे आका अलैहिस्सलाम का ये फरमान भी मौजूद है, फरमाया दोनों को कत्ल कर दिया जाए, दोनों मर्दों को। कौमे लूत वाला जो काम है कि मर्द का मर्द के साथ बुराई करना, मर्द का मर्द के साथ बुराई करना, मेरे आका ने फरमाया उन दोनों को कत्ल कर दिया जाए। और ये भी मेरे आका अलैहिस्सलाम बल्कि हजरत मौला अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम ने उन दोनों को जला दिया था। ऐसे बंदों को जला दिया मेरे हजरत मौला अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम ने। और फिर हजरत सिद्दीक अकबर ने अपनी जिंदगी में आपने भी जो फैसला किया कि ऐसे दो बंदों को, दोनों मर्दों को एक दीवार जिंदा उनके ऊपर दीवार गिरा के दीवार के नीचे जिंदा उन दोनों को मारा गया, दफन कर दिया गया दीवार के नीचे। यानी ये इतना बड़े गुनाह और इतना बड़ी नहूसत और इतना बड़ा ये यानी उन पर अजाब है। तो इस वास्ते बंदे को बचना चाहिए इस तरह के अजाब से। और मेरे आका अलैहिस्सलाम का ये फरमान भी मौजूद है, जब हजूर ने ये बात कही तो आज कोई कहे कि मौलाना साहब आप ये बात ना करते, अगर इससे किसी को फायदा पहुंच जाए तो सवाब है। कोई अगर बच जाए इस गुनाह की बीमारी से, नहुसा से अगर कोई बच जाता है तो ये सवाब है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगों बाज आ जाओ इस तरह के गुनाह से, हया करो, फरमाया शर्म करो। किस तरह का गुनाह कि तुम औरत के बड़े पेशाब के मकाम में तुम बुराई करते हो, अपनी औरतों के बड़े पेशाब के मकाम में तुम गुनाह करते हो। फरमाया इस तरह के तुम बेहयाई के धंधे से तुम बाज आ जाओ। और फिर ये भी मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा इस तरह का काम करता है वो बंदा मलून है, वो शख्स मलून है, वो शख्स जो इस तरह का काम करता है। सूद तो वो बीमारी है, वो गुनाह है। फरमाया कि 1 दिरहम सूद का खाना। और मैं इससे पहले ये भी बताना चाहता हूं कि हदीस पाक के अंदर ये मौजूद है, मैं पूरे वसूख के साथ कह रहा हूं, हदीस पाक के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं। फरमाया सूद देने वाला भी गुनाहगार, सूद लेने वाला भी गुनाहगार, सूद का वो जो रजिस्टर, वो जो कागजात हैं लिखने वाला भी, वो भी गुनाहगार है। और सूद पर गवाही, जो बंदा गवाह बनता है, फरमाया वो भी गुनाहगार है। और फतवाजात की रोशनी में तो जो यानी सूद, जिस बैंक के अंदर सूद होता है, तो फतवाजात की रोशनी में तो उस बैंक के जितने मुलाजिम हैं वो भी इस गुनाह के अंदर शरीक होते हैं, जुर्म के अंदर। सूद का 1 दिरहम खाना, 1 दिरहम सूद का खाना जो गुनाह है, 36 मर्तबा जिना के बराबर गुनाह करार दिया गया है सूद का 1 दिरहम खाना। और फरमाया कि सूद के 70 हिस्से हैं और उन 70 में से सबसे कम जो हिस्सा है वो ये है कि अपनी मां के साथ जिना करना है। यानी इतना जो सबसे कम गुनाह है सूद के, यानी 70 हिस्से हैं, 70 इतने बड़े गुनाह हैं सूद के। और उन 70 गुनाहों में से जो सबसे कम गुनाह है, फरमाया वो ये है कि अपनी मां से क्या है, जिना करना है। बाकी 69 हिस्से अलहदा हैं, सिर्फ 70 में से 1 हिस्सा ये है। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इनसे बचने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।